Hello and good morning, students. Today we are going to read English grammar. Okay, and our today's topic is narration. Okay, this topic is for class 8. So, dear students, let's start for narration. Okay, first of all, we will know about narration. The word narration is made with the word of by narrate. In Hindi, the Hindi meaning of this word narrate means वर्णन करना, व्याख्या करना, विवेचना करना. Okay, so let's come to start on the topic narration. And narration, it is of two kinds. How many kinds? Two kinds. First is direct speech. The first is direct speech. And the second one is indirect speech. There are two kinds of narration. Narration के दो प्रकार होते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच, पहला हो गया डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, in other word, narration is called speech और statement also. narration को हम लोग दूसरे शब्दों में statement भी कहते हैं या speech भी कहा जाता है, जिसका हिंदी में कथन होता है अर्थ. narration का हिंदी में अर्थ कथन होता है. ओके, तो डायरेक्ट स्पीच के बारे में हम लोग जानते हैं. लेट्स गो. व्हेन और स्पीकर repeats others statement in others words, that is called direct speech. That is called direct speech. Okay, double inverted comma or single inverted commas are used in indirect speech. As for example number 1, Ravi says to me, I am your friend. Okay, the first example is Ravi says to me, I am your friend. So, students, let's start to understand in Hindi direct speech. When a speaker repeats others' statement in other words, that is called direct speech. यानी कि जब कोई वक्ता, स्पीकर का हिंदी अर्थ होता है वक्ता, रिपीट्स मतलब बोलना, दोहराना, प्रकट करना. जब कोई वक्ता किसी दूसरे के द्वारा कहे गए कथन को दूसरे के शब्दों में ही व्याख्या करता है, तो उसे हम लोग जो है डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच. हिंदी में इसे प्रत्यक्ष वाक्य कहा जाता है. क्या कहते हैं हिंदी में? प्रत्यक्ष वाक्य. आइए इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं. एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पर. रवि सेज टू मी, आई एम योर फ्रेंड. यानी रवि मुझसे कहता है, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. ओके, डायरेक्ट स्पीच हैज इन्वर्टेड कॉमास और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास. बोथ आर यूज्ड. According to traditionally grammarian, double inverted commas are used, but sometimes in modern English,
single inverted comma is also used. Okay. पुराने ग्रामेरियन के अनुसार, हम लोग पुराने जो व्याकरण का जो बुक देखते हैं, पुराने जो ग्रामेरियन है उनके अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। बट आजकल मॉडर्न आधुनिक जो व्याकरण है, व्याकरणाचार्य जो हैं, उनके अनुसार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम लोग वाक्य में कि रवि सेज टू मी, ये हमारा पहला वाक्य हो गया। और दूसरा आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा डबल इन्वर्टेड का प्रयोग किया गया है। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर स्पीच दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इन हिंदी में इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष वाक्य कहा जाता है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अप्रत्यक्ष वाक्य। ओके, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। व्हेन अ speaker repeats others statement in his own words, that is called indirect speech. Indirect speech, that is called indirect speech. Okay, no any inverted commas are used. No any inverted commas are used. Indirect speech, when a speaker repeats others' statement in his own words, that is called indirect speech. Okay, and indirect speech, no any inverted commas are used. Okay, there are no inverted commas. Indirect speech is without commas. Either it is double inverted commas or it is single inverted commas. Okay, so let's another example. Ravi tells me that he is my friend. He is my friend. Students, here is the example that I have written. Ravi tells me that he is my friend. Let's come to understand it in Hindi. आइए हम लोग इसे हिंदी में समझते हैं अब इनडायरेक्ट स्पीच को। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग जो है अप्रत्यक्ष वाक्य कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है डायरेक्ट स्पीच के एकदम से अपोजिट में। कैसे? तो व्हेन, जब स्पीकर, जब कोई वक्ता किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को अगर उसी के शब्दों में न दोहराकर, न बोलकर, अपने शब्दों में, स्वयं के शब्दों में, खुद के शब्दों में अगर उसके वाक्य को एक्सप्रेस करता है, प्रकट करने का प्रयास करता है या उसको व्यक्त करता है, तो हम लोग जो है उस वाक्य को अप्रत्यक्ष वाक्य कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? अप्रत्यक्ष वाक्य। ओके, और अप्रत्यक्ष वाक्य में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी प्रकार का कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझिए। रवि टेल्स मी, रवि मुझसे कहता है दैट ही इज माई फ्रेंड, यानी रवि मुझसे कहता है कि वह मेरा दोस्त है।
ठीक है, यह वाक्य जो है रवि ने कहा, मेरा कहा हुआ वाक्य नहीं है, यह रवि ने मुझसे कहा है और मैं उसके वाक्य को जो हूँ नहीं, रवि के द्वारा कहे गए कथन को मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पर रवि ने क्या कहा था, रवि सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। रवि के द्वारा कहे गए कथन में आई और एम का प्रयोग किया गया था, यानी रवि ने अपने लिए आई और एम का प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ पर स्पीकर ने यानी मैंने, यहाँ पर स्पीकर कौन है? मैं हूँ, इसलिए मैंने आई और ही इन दोनों शब्दों के बदले में मैंने खुद के अपने शब्दों का प्रकट किया है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो यह हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स कम टू अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट, वेरी मार्केबल पॉइंट। ओके, नोट, so students, now let us see here another note। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट बताने जा रहा हूँ। जो हमारा प्रश्न होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। किस स्पीच में क्वेश्चन है? डायरेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको इसमें डिफरेंस करना पड़ेगा कि डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको इजी होगा। यू विल फाइंड वेरी इजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन देयर इज आइदर इट इज डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले आप सेंटेंस में देख लीजिए कॉमा का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। अगर वाक्य में दिया गया स्टेटमेंट में अगर आपको कॉमा लगा हुआ है, इट मीन्स नो डाउट दैट इज डायरेक्ट स्पीच। अगर आपको वाक्य में कॉमा मिल जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच, अगर कॉमा नहीं रहता है तो वो कौन सा स्पीच होगा? इनडायरेक्ट स्पीच होगा। देखिए तो यहाँ पे कॉमा मिल रहा है, यहाँ पर देखिए तो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यह हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। कौन सा वाक्य का हो गया? यह डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हो गया। क्लियर? अब जब यह डायरेक्ट स्पीच का हो गया तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो वाक्य है ये दो वाक्य। हाउ मेनी सेंटेंसेज आर हियर? देयर आर 2 sentences। The first one is out of inverted commas, that is Rakesh says to me। यहाँ पर देखिए दो वाक्य है। एक वाक्य जो राकेश says to me जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, और दूसरा वाक्य I am your friend जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो कितना वाक्य हो गया यहाँ पर? 2 वाक्य। क्लियर? फर्स्ट वाक्य यानी जो वाक्य डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, इस पूरे सेंटेंस में हमें पहले से मालूम है, पहले से हम जानते हैं कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। एनी डाउट? वेरी गुड, नो डाउट। राकेश इज हियर, सब्जेक्ट सेज, द वर्ड सेज इज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ड सेज, सेज यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। सेज कैसा वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब। और हमारा टू मी जो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। क्लियर? राकेश यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सेज जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और टू मी ऑब्जेक्ट हो। यह वाक्य जो पूरा है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। कहाँ पर है वाक्य हमारा? डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। क्लियर? आइए हम लोग नेक्स्ट वाक्य पे चलते हैं। सेकेंड वाक्य जो हमारा है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद है उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑलरेडी ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि कॉमा लगा हुआ है। नेक्स्ट जो देखेंगे जो पूरा वाक्य जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो वाक्य डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो क्या हो गया? इस तरह से
ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया है। नाउ इट इज क्लियर रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच टू यू स्टूडेंट्स। It's very markable point. There are 2 points. The first is reporting verb and the next is reporting verb. These are the two wheels. These are the two wheels on whole rules of narration moves. ये दो जो पॉइंट हो गया वहाँ रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच, इसी के इर्द गिर्द नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सारा रूल जो है बस इसी दोनों पर बेस्ड है। सो यू हैव टू मार्क आउट एंड पॉइंट आउट दिस 2 पॉइंट्स। आपको इसको अच्छी तरह समझ लेना होगा, ठीक है, तभी जो है आप जो है नरेशन को समझ सकते हैं और आगे सारा रूल आपको ध्यान में रहेगा। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू वाइप द बोर्ड एंड वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, dear students, let's come to see the example. Okay, Rupesh says to me, I am your classmate. Here is an example and now we have to change from direct to indirect speech. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया हुआ है और इसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको हम मार्केबल पॉइंट्स लिखने वाले, हिंट्स या स्टेप्स भी आप कह सकते हैं उसको, उस स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग इजी वे में जो है इसको चेंज कर सकते हैं नरेशन को। तो आइए हम कुछ स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको लिख देते हैं। आइडेंटिफाई reporting verb, identify reporting verb and reported speech, reported speech। okay, next point, reporting verb plus object, reporting verb plus object changes, how change, first say change into tell, second sage change into tells and said change into told, told। now third step is, okay, inverted commas is change into that, inverted comma change into that, persons under persons of reported speech, of persons of reported speech are changed। how it changed, wait, persons of reported speech are changed।
हाँ भाई 1 2 3। हम तो अभी जस्ट वीडियो बना के निकल ही रहे हैं। आते हैं बच्चे अभी स्कूल का। Okay, some steps here I have written. Okay, and we have to see. First step, to change from direct to indirect, we have to follow some steps, and the first step is look. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जो स्टेप्स लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप्स क्या देखना है, वहाँ देखिए, आइडेंटिफाई रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले तो आप पहले ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अंतर करना सीख चुके हैं। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा मिल जाता है वाक्य में तो समझ लीजिए कि वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच का है। या देखिए तो डबल इन्वर्टेड कॉमा है या नहीं है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया है। सो इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। सी सेज इज रिपोर्टिंग वर्ब। सेज क्या है यहाँ पर, सेज हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, एंड द नेक्स्ट द सेंटेंस विच इज अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड जो वाक्य हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसे क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और ये सेज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टू मी। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट टू मी है। सो रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चेंजेस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो से चेंज होगा टेल में, सेज चेंज होगा टेल्स में, और सेड चेंज होगा टोल्ड में। यह तभी बदलेगा जब ऑब्जेक्ट रहेगा। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब डज नॉट चेंज। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं किया जाता। यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको चेंज करना है। क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है इट नेवर चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है। क्लियर। यानी क्या मतलब है, रिपोर्टिंग वर्ब केवल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, किसे बदलना है, टेल्स में। तो आइए इसको लिख देते हैं। रुपेश जो है सब्जेक्ट सेम टू सेम लिख देंगे। ओके, नाउ सेज देयर इज ऑब्जेक्ट आल्सो, सो सेज विल चेंज इनटू टेल्स। सेज को चेंज करना है, टेल्स में बदल देंगे। ठीक है, एंड वी डू नॉट राइट टू आफ्टर टेल। यहाँ पर हम लोग जो है टू को नहीं लिखते हैं। क्लियर। क्यों नहीं लिखा जाता है ये भी आप जान लीजिए। ये जो है इंट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब पर टू का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। सो मी विल बी रिटन हियर एज यूजुअल। मी को सेम टू सेम हम लोग उतार देंगे, यहाँ लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर डबल इन्वर्टेड है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखना है, दैट लिखना है। दैट ही क्यों लिखना है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस असर्टिव है। जब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस असर्टिव रहता है तो दैट का प्रयोग करते हैं, इसलिए दैट विल बी रिटेन। यहाँ पर दैट को लिख दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो वाक्य डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर आने वाला पर्सन को हमको चेंज कर देना है। कैसे बदलना है, तो पर्सन के नियम के अकॉर्डिंग। क्या रूल है इसका, तो 1 2 3 और सन। फर्स्ट स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड स्टैंड फॉर सेकंड पर्सन, थर्ड स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट, एंड नो चेंज। It means first person changes according to subject. What is subject? According to the subject of reporting verb. First person बदलेगा reporting verb के subject के according. Second person बदलेगा reporting verb के object के according. Third person no change. Third person नहीं बदलता है। Let's come here. See, I क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, नॉमिनेटिव केस है। ये पर्सन के अकॉर्डिंग टेबल में आता है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा पर्सन का टेबल। ओके, आपको केस याद करना पड़ेगा और नंबर याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका टेबल लिख दूंगा। आइए यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा।
तो सब्जेक्ट रुपेश है, रुपेश कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये नाउन है, ये तो सभी को पता है कि नेम जो है नाउन होता है, इसके बदले में प्रोनाउन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, रुपेश के बदले में ही हो जाएगा। आई के अकॉर्डिंग एम लगा है तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ओके, योर इज सेकंड पर्सन, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, देखिए योर सेकंड पर्सन होता है, योर सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करना हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। किसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। योर का केस यहाँ पे जानना होगा, पॉजिटिव केस है, ठीक है। पर्सन बदलते समय हमारा नंबर और केस नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, नंबर और केस नहीं बदलता है। यानी मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस माई हो जाएगा। क्लासमेट इज थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन है, क्लासमेट जो है हमारा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस, इट इज रिटन एज यूजुअल, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। इन दिस वे वी हैव चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आई एक्सपेक्ट दैट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड यू। ओके, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट जो है मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। ओके, हियर इज माय नंबर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है इसको समझने में तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या इस नंबर पे आप कॉल करके कमेंट करके कैसे भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू दिस मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।